Hello everyone, I am Kiran Sahel and today we all have been gathered here to discuss about a very ongoing topic which is very common nowadays, which is COVID obviously. But as we all know, like today is Sunday and everyone is at home and in Delhi especially अभी तो lockdown curfew लगा हुआ है. So we thought why not, we should all gather around, we all youth and we all should gather around and talk about this topic, which is, COVID and its impact. Now, as we all know, the rising cases in Delhi and in India and in everywhere in the world. But I think everyone talks about COVID and the impact of COVID and everything, but no one generally talks about, the impact or the solutions. What are the solutions that we can bring to the society regarding COVID and its impact on the society? So here we are today. So on the behalf of Chapal Foundation, I welcome you all to this live, and I want to welcome these guests with me today. So first of all, we have Achal. Achal is a student, economics student, and she's an active social worker who works in the education sector, and she educates the underprivileged. Next up, we have Mr. Darshwath, who is the founder of Chapal Foundation. Mr. Darshwath is a very hardworking and talented individual. He's been working for the upliftment of the society since his early 20s, and he has left no stones unturned. Sir, I welcome you. And last but not the least, we have Ayush Trivedi. He is a budding journalist and he is the co-founder of a very famous Instagram page. It's Ruling Delhi, and he has a massive following of 12.9K followers. I welcome all of you. First of all, I would like to ask Darsh sir. Sir, I would like to ask you something. First of all, as we all know, we all are youth, and you're also a youth, as you are just 25-year-old. So you started Chapal Foundation in very early ages of your life, like that is early 20s. So I would like to ask you how and why did you start Chapal Foundation? What was the idea behind it? Thank you so much, Kiran, and thank you so much, Achal, and जो भी इस लाइव को देख रहे हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि एक ऐसा इनिशिएट आप सब टीम ने मिलकर लिया है. सो चौपाल फाउंडेशन जैसा सब बोलते हैं, मुझे लगता है कि सब एक एनजीओ का डेफिनेशन जब आता है कि हाँ एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चौपाल फाउंडेशन जस्ट एक फैमिली है जहाँ यूथ लोग अपना अलग अलग आइडियाज के साथ आके काम करते हैं. तो आइडिया कुछ ऐसा मैं ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट था जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम ऐसा स्टार्टिंग से ही एक कल्चर मेरा चाइल्डहुड से मैं कहूँगा रहा है, जो मैंने अपने घर में और अपने आसपास फ्रेंड सर्कल में और अपने फादर के साथ एक बहुत सारी चीजें ऐसा ग्राउंड रियलिटी मैंने अगर मैं कहूँ तो मैंने वो देखी है कि कैसे फार्मर्स, कैसे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिनको खाना नहीं मिल पाता, वो कैसे सरवाइव करते हैं. और अगर मैं कहीं एक हद तक कहूँ तो हम सब लोग, चाहे कोई सिटी से या गांव से हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर होते हैं और हम लोग फेस भी करते हैं अपनी लाइफ में, जिसको हम स्ट्रगल पीरियड बोल देते हैं. तो जस्ट एक आइडिया था, एक बस अपने एक बर्थडे पे एक इनिशिएट किया कि चलो कुछ लोगों को, जैसा सब यूथ का रहता ही है कि क्यों ना अपनी एनिवर्सरी बर्थडे किसी के साथ बनाए. तो जस्ट एक कुछ बच्चों के साथ केक कट करने गए और उसके बाद देखा कि अच्छा इतना बड़ा इतना बिग प्रॉब्लम है. तो उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराने से पहले काम करना शुरू किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराया. सो एक छोटा सा एक आइडिया था जो आज एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एक रूप ले चुका है और बहुत बड़ा एक हम सब लोग टीम उसमें मिलके काम कर रहे हैं. I would like to say it is really a great thing which you have started. Like generally in our 20s, I don't think major of the youth thinks about doing this social work and then starting an organization as a whole. So it is a great thing. So coming back on the topic, our today's live topic is COVID and COVID's impact and its solution. Achal, I would like to ask you, how has COVID impacted you as a student? Because as a student, everybody talks about economy and everything. Nobody talks about a student. Yeah. So how has COVID impacted you?
Well, first and foremost, it has robbed me of my senior year. I think COVID started when I was in my second year. तो मेरा आधी कॉलेज लाइफ तो घर पे बैठ के निकल गई. एंड जो भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस करने होते हैं, एंड आई कुडंट डू दैट. नो कॉलेज फेस्ट आई कुड अटेंड, एंड everything just बस घर पे बैठ के सब कुछ. And it has been really difficult to differentiate between my personal life and my studies or my work, because करना तो सब कुछ घर पे बैठ के ही है. Now I'm attending a live event and my mom will be shouting at the back at my brother. So yes, those are like the major challenges that I faced. Okay, so sir, Ayush, I would like to ask you, as you are a a blogger, so what were the Yeah. challenges that you faced for regarding COVID, as related to your blogging or your personal life? Okay. So, firstly, before telling the challenges that I faced as a blogger, I would be like quoting that thanks to Chopal Foundation for organizing such an event, that we could like come up, the youth can come up and like speak something about COVID. That's a pandemic. So now, talking about my challenges that I faced, so the foremost challenges that I faced was about the content. जैसे सबको पता है कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी, एंड हमने जो पेज शुरू किया था हमारा ड्रूलिंग दिल्ली का, वो शुरू ही लॉकडाउन पीरियड में किया था. सिंस हमें फूड फोटोग्राफी करना काफी ज्यादा पसंद था, तो हमारे पास पहले से तो कंटेंट अच्छा खासा था. बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो हमारे पास कंटेंट की कमी होने लगी, क्योंकि सबको टेम्पटिंग और ड्रूलिंग चीजें पसंद है, देखना पसंद है, लाइक करना पसंद है. फिर हमारा एक जो मेन फोकस था वो ये था कि हम मोर ऑफ ऐसे स्टॉल्स पे, ऐसे स्ट्रीट फूड पे फोकस कर सकें जो जिनकी इतनी ज्यादा रीच नहीं है, जहाँ पे लोग ज्यादा जाते नहीं है, वहां पे लोग रीच आउट करें, उनको एडमिरेशन दें और बेसिकली फॉलो करें, वहां पे जाएं, उनका धंधा पानी बढ़ाएं जो छोटे स्टॉल्स हैं. तो एक मेजर जो चैलेंज आया था वो इसी चीज का आया था. सेकेंड चैलेंज जो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ महीनों से, वो ये है कि सिंस हमने कोविड के टाइम पे ये शुरू किया था, तो हमारे जो एक्टिव फॉलोअर्स थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे, हमारी रीच काफी ज्यादा अच्छी जाती थी. बट इफ आई टॉक अबाउट करंट सिचुएशन, तो जो हमारे स्टार्टिंग में फॉलोअर्स थे वो अब के टाइम पे बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गए हैं, तो जिसकी वजह से रीच बहुत ज्यादा लो हो गई है. बेसिकली डेड फॉलोअर्स हो गए हैं, किसी ने फोटोग्राफी छोड़ दी, किसी ने पेज छोड़ दिया है अपने किसी और काम की वजह से. तो ये दो मेजर चैलेंजेस थे जो मैं कोट करूंगा. Okay, sir, they talked about their personal life and their Yes. challenges. So I would like to ask you, ki how are you holding up? How was your quarantine life and what did you do? सबसे पहले तो मैं आयुष ने जो बताया कि उन्होंने जो एक काम शुरू किया, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था कि हर यूथ के साथ ना एक स्टोरी होती है. जैसे उन्होंने बोला कि हम छोटे छोटे स्टॉल को जाके उनको कैसे हैंड होल्डिंग टाइप का मिल सकता है, कैसे उनको एक फेम मिल सकता है. तो हमें यूथ का, मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ स्वामी विवेकानंद को, और मुझे लगता है हर यूथ करता ही है अपनी कॉलेज लाइफ में, और स्वामी विवेकानंद को हमने कहीं ना कहीं सुना पढ़ा होता ही है. तो वो एक बात बोलते थे कि सबने अगर सुना होगा कि अगर मेरे को 100 जब यूथ मिल जाए अगर, तो मैं पूरा देश का एक नक्शा बदल सकता हूँ. और ये ट्रू है, ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूथ के अंदर ना एक हमारे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हमें को अगर कुछ करना है तो हम कर गुजरते हैं. मतलब हमारे पास एक वो बिल्कुल. टाइम है, हमारे पास वो टाइम है कि हम कर सकते हैं. तो पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ आयुष कि आप अपने पर्सनल so much, लेवल sir. पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत Thank you बड़े so बड़े much, sir. ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं कि कैसे एक छोटे छोटे स्टॉल्स को और छोटे छोटे लोगों को उनको सेटअप करा जाए. तो कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड अगर मेरे Thank you so much, क्वारंटाइन की sir. बात करें तो मैं अगर अभी भी कहूँ तो अभी भी कोविड सस्पेक्टेड मैं अपने आप को बोल सकता हूँ. बट टीम का और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं और जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनके लिए हम लोग लगे हुए हैं, उन लोगों की जो दुआएं और आशीर्वाद है, उन लोगों की वजह से हमारा जो काम है वो मैं कहूँगा कि हमारी अगर हेल्थ पे भी टीम की बात आती है तो उनके आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें किसी न किसी के लिए कुछ करना है. तो हम लोगों का कोविड पीरियड ऐसा गया, फर्स्ट लॉकडाउन सब जानते हैं कि कितना भयंकर सिचुएशन था.
उस समय घर से निकलना भी बहुत मुश्किल था। हम लोग भी कुछ दिन तो बंद रहे, 2-3 दिन घरों में, लेकिन फिर सोचा कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम लोगों ने फिर चौपाल फाउंडेशन ने लोगों को रीच आउट करना शुरू किया। पहले तो घरों से खाना बनाना, अपने घरों से खाना बना के वॉलंटियर्स ने खाना बना के पहुंचाना शुरू किया। लोगों ने देखा कि हाँ हम फील्ड पे निकल रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं वो ऐसी सिचुएशन थी, हेल्प करने के लिए सब कोई तैयार थे, लेकिन फील्ड पे निकलना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो लोगों ने हमें हेल्प किया, IBM, नास्कॉम, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, जिनका मैं आज इस लाइव में भी धन्यवाद बोलता हूँ, जिनकी वजह से हम लोगों ने लगभग 10-12 हजार फैमिली में कहूँगा ऐसे हमने उनको राशन पहुंचाया, और अपने साथ बहुत सारे NGOs को भी राशन पहुंचाया। तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि हमें मौका मिला कि हम काम तो कर ही रहे थे सोशल वेलफेयर के लिए, लेकिन हमें अपने आप को प्रूव करने का टाइम मिल गया कि हाँ ऐसे टाइम में हम अपने आप को चौपाल फाउंडेशन को प्रूव कर सकते हैं। राइट सर। सर एज आपने जैसे अभी कहा कि हम लोग ने टीवी वगैरह पे बहुत देखा कि कोविड का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है या कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, बट आपने ऑन द फील्ड जाके देखा, राइट? आपने उनको खाना पकड़ाया, पहुंचाया, राशन किट्स, बहुत कुछ पकड़ाया। सो आई वुड लाइक टू नो एंड आई वुड वांट यू टू टेल कि व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट कोविड का जो ग्राउंड रियलिटी पे स्लम्स में और जो लोग डेली वेजेस वर्कर उनके ऊपर एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ा था, एंड हाउ डिड चौपाल फाउंडेशन हेल्प्ड देम? आई वुड लाइक टू नो दैट। मैं अगर किरण बात करूँ ना, तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने, सरकार चाहे राज्य सरकार हो कि कहीं का भी अगर हम बात करें, गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट, सबने राशन जैसी बहुत सारी एक्टिविटी चलाई तो, लेकिन जहाँ अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, जिस स्लम में रहते हैं, जिस गांव में ऐसे जो डेली वर्कर जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड था ही नहीं, और उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जिनके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वहां तो मैं कहना मेरा गलत नहीं होगा, उन लोगों के पास तो डबल भी राशन पहुंच रहा था, वो लोग ले रहे थे या उनके पास कोई ना कोई पहुंचा रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज था ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, और उनके पास राशन पहुंचना बिल्कुल असंभव जैसा था, इम्पॉसिबल टास्क था। तो एक स्टोरी है, हम आने वाले टाइम में दिखाएंगे भी, एक यूपी में ही एक लोकेशन पड़ता है नोएडा में, जहाँ मैं अगर लोगों को बताता हूँ तो बड़ा हैरान होते हैं कि ऐसी लोकेशन NCR में है, जहाँ अपने जो यमुना है उसके दूसरी तरफ टापू पे लगभग 50 परिवार के आसपास, 50 फैमिलीज उधर रहती हैं। उनके पास ना तो आधार कार्ड, ना कोई राशन कार्ड है, और ना उनके पास कोई सोच सकता था कि यहाँ लोग रहते हैं तो वहां तक कोई पहुंच पाए। तो हमारी टीम ने, मैं टीम को बहुत अपनी टीम को वास्तव में, मैं कोविड टाइम में भी हमारी टीम निकल के आई, हम लोगों पे ट्रस्ट करके, फाउंडेशन पे ट्रस्ट करके, उन लोगों ने फाइंड आउट किया और उन लोगों तक राशन पहुंचाया। जैसे मैंने आपको बताया 10,000 प्लस फैमिलीज तक काम किया, बट उन लोगों के लिए काम करना और ऐसे लोगों के लिए काम करना जिनके पास कुछ माध्यम ही नहीं था कि हाँ राशन कार्ड या कुछ है, वो हमारे लिए एक था कि हाँ हमारे लिए भी वो सीखने जैसा था, और फाउंडेशन के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि ऐसे लोगों तक हम पहुंच पाए। तो ग्राउंड रियलिटी मैं कहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं थी, सब कुछ था, बट ऐसे लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाई, जो क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो NGOs हो। तो ऐसे लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पाई, उसमें से कुछ हद तक, शायद 1-2%, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, चौपाल फाउंडेशन रीच आउट कर पाया और ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा पाया। ग्रेट वर्क So, सर, मेरा ट्रूली ग्रेट। या जी सर, इससे रिलेट करता हुआ मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। एंड लिटरली हमें भी आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, सोसाइटी को भी एंड लोगों को भी। आपने 10,000 एंड प्लस लोगों तक काम किया है, एंड हम चाहेंगे और भी ज्यादा अच्छा आप काम करें, इसके ऊपर लेवल तक जाए। तो सर, इससे मेरा एक रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि जैसे आपने राशन वगैरह की बात की थी, तो मैं भी एक फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैं फूड की बात करूंगा, मैं अन्नदाता की बात करूंगा, जो हमारे फार्मर्स होते हैं। तो बेसिकली आपने राशन तो दिया, बट हमारे फार्मर्स की क्या कंडीशन है एंड वो कैसे इफेक्ट हुए इस कोविड के टाइम से, वो मैं जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल। एंड सबसे पहले जो आपने थैंक यू बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे बोला, मैं टीम के लिए थैंक यू बोलूंगा
क्योंकि हम एक फाउंडेशन और एक टीम बन चुके हैं, तो मेरा इंडिविजुअल ऐसा कुछ उसमें नहीं रहा। अगर टीम वर्क नहीं होता तो शायद वो पॉसिबल नहीं था। बात जहाँ हम करते हैं फार्मर्स की, तो इसमें बेसिक अगर हम अपने फाउंडेशन की बात करें तो हम 4 इश्यूज पे काम करते हैं, मेजर। और मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आ जाता है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। सबसे पहले एजुकेशन, जो हम स्लम में और अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए एजुकेशन, हमारी पाठशालाएं चलती हैं। दूसरा, हमारा एक किसान चौपाल के नाम से फार्मर्स के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है। तो हम सब जानते हैं कि अगर सबसे मेजर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा मुझे लगा कि हाँ फार्मर्स के बारे में आपने पूछा, क्योंकि मैं भी अगर कहीं ना कहीं कहूँ, मेरा भी बैकग्राउंड फार्मिंग से रिलेटेड ही है। तो फार्मर्स की लाइफ कोविड में मैं कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा, जो एक अन्नदाता हम जिसको बोलते हैं, क्योंकि सब अन्न के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। सबको राशन हम बांट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बट जहां से राशन आ रहा था उसकी हालत वास्तव में बहुत अलग तरीके की मैंने देखी। हम लोग फील्ड पे जब निकलते थे तो फार्मर्स का जो फसल थी, जैसे अगर उन्होंने कोई वेजिटेबल लगाई हुई है, तो कोविड का आप सबको ध्यान होगा, कोविड में लोगों ने पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, पूरा सील कर देते थे। तो अगर किसी विलेज में एक कोविड का केस भी है तो अनाउंसमेंट हो जाता था कि इस गांव से कोई भी दूध या किसान की सब्जी या किसान का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अब मुझे नहीं पता ये किस हद तक सही है, बट वो जो ड्यूरेशन 1 मंथ का होता था, कोविड पीरियड, सील हो गया गांव या उसका विलेज बिल्कुल सील हो गया। तो उसके बाद जो उस फार्मिंग पूरे गांव की, एक फार्मर की नहीं, उस गांव में जितने किसान परिवार थे, क्योंकि गांव किसान परिवार से ही बनता है, वो सबका पूरे महीने का नहीं, मैं कहूंगा आने वाले साल का पूरा पूरा उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। और पूरी फसल जो उन्होंने इन्वेस्ट करके लगाई हुई होती थी, उसमें शायद उनका इन्वेस्टमेंट भी निकलना ना के बराबर था। तो मेजर इफेक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं सिटीज में जो स्लम में रहते हैं, कहीं ना कोई एनजीओज, इंडिविजुअल आ ही रहे थे, बट जहाँ फार्मिंग की बात करें, विलेजेस की बात करें, वहां तक पहुंचना बहुत मैं कहूंगा कि इम्पॉसिबल था। लोग नहीं जा पा रहे थे, ना मीडिया में या कहीं भी, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सच को स्वीकार करना चाहिए एनजीओज को भी, कि हम लोग वहां लग जाते हैं जहां हमें लगता है कि हाँ इधर न्यूज ने दिखा दिया यहाँ परेशानी है, बट मेजर चैलेंजेस विलेजेस में होते हैं। वहां की लाइफ कैसे सरवाइव कर रही थी, लोग नहीं क्योंकि उन लोगों के लिए नया था। और आपने स्टोरीज भी बहुत देखी होंगी कि किसानों ने बोलना शुरू कर दिया था कि इससे अच्छा तो मर जाए, कोविड से नहीं तो वैसे मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल फार्मर से रिलेटेड है, तो उनका लाइफ वास्तव में बहुत इफेक्ट हुआ, जो कि अभी तक रूटीन पे नहीं आया है। अभी भी ये हालत है कि सेकेंड लॉकडाउन लगा, उसमें भी हमने देखा किस तरीके की हालत हुई। फिर से थोड़ा सा मील्स, जहां अगर आप जानते होंगे गन्ना या ऐसा कुछ खरीदना बंद कर देते हैं, तो बहुत बड़ा एक मेजर फार्मर की लाइफ पे अभी तक इम्पैक्ट है। और वो कब तक सही होगा, हम लोग तो उस पे काम कर रहे हैं कि कैसे फार्मर को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बट वही लिमिटेड अभी चीजें हैं। तो हम कुछ लोगों की लाइफ सुधारने पे लगे हैं, तो देखो कहाँ तक ये चीजें जाती हैं। सर, इससे रिलेट करते हुए हमें एक मैसेज देना चाहिए। जैसे होली आ रही है अभी, तो मार्च में होली पड़ेगी, एंड यूपी जो है वो गन्ने का सबसे ज्यादा, शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है। तो हाँ, होली चाहे भले स्टॉप कर दी जाए खेलने से, लेकिन हमें जो शुगर केन यूज होता है, जो कि फार्मर्स उगाते हैं बहुत मेहनत करके, तो उसका यूज जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उतनी ही तादाद में, जैसे हम पहले मनाते थे होली, उसी तरह से मनाएं, पूजा वगैरह करें एंड शुगर केन का यूज करें, जिससे हम फार्मर्स को अपलिफ्टमेंट दे पाए एक तरह से। बिल्कुल। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। इसके लिए जो अपना किसान चौपाल चलता है आयुष, उसमें हम लोग, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि फार्मर को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, यानी वो किसी मार्केट पे भी डिपेंड ना रहे। अब जैसे कोविड की सिचुएशन सबने देखा, सब फार्मर्स मार्केट पे डिपेंड है, मंडी बंद है या मील्स बंद है या कुछ भी बंद है, तो उनका सामान नहीं जाता है। आपको मैं रियलिटी बताऊं, जो सब्जी, अगर एक एग्जांपल मैं लूं, जो आप अगर गोभी भी यहाँ मार्केट में आप 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं, किसान का 1 रुपए किलो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है। ये हालत है। कोविड सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी की भी बात कर रहा हूँ। उसको बड़ा एक अलग टाइप का विषय है, उसको हम फिर नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, किसान चौपाल करते हैं।
तो आपका बिल्कुल स्वागत करता हूँ मैं, आपने जो सजेशन दिया हम लोग इस पे काम करेंगे। Okay, Ayush, I would like to ask you, अभी हम जैसे farmers और food वगैरह की बात कर रहे हैं, so you have a huge audience, right? You have 12.9K Yeah. followers. So, like, have you used your audience for some social work or some society's betterment or something? इसके लिए मैं हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलूंगा। हमने दिवाली जब थी, दिवाली के टाइम पे सरोजिनी नगर के पास एक बस्ती है, वहां के लोग दिए वगैरह बनाते हैं, दिया होते हैं और लैंप होते हैं, जो कि लाइटिंग वगैरह के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होममेड होते हैं, वो काफी चीप रेट में मिलते हैं। हमने एक चीज देखी, मैं किसी कंपनी या किसी उसका नाम तो नहीं लूंगा, किसी स्टोर का, लेकिन काफी बड़े बड़े स्टोर वो सेम दियास जो 5-5 रुपए के सरोजनी नगर के पास की मार्केट में मिल रहे थे, जो खुद के उनके बनाए हुए थे, वो सेम दियास किसी स्टोर में 60 रुपीज, 100 रुपीज ऐसे मैंने देखे हैं। तो हाँ, Right. मैंने उनको उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए हमने प्रॉपर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी और प्रॉपर उसको तरह से दिखाया गया था, पोर्ट्रे किया गया था, एंड उसका बाकायदा प्राइस स्पेसिफिकेशंस दिए थे, ताकि जो भी लोग एटलीस्ट जो दिल्ली में रहते हैं वो कम से कम वहां जाके वो कर सके, वहां पे जाके दियास खरीदें। इसके अलावा हमने स्मॉल बिजनेसेस के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, ये तो अभी इस दिवाली की बात मैं कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक टाइम जब सेकेंड वेव थी, काफी सीवियर इफेक्ट था, उस टाइम पे हमने नए नए स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन किया था, उनको शाउट आउट दिया था, एंड जो कि बिल्कुल अनपेड था। हमने बिल्कुल उनसे कोई चार्ज नहीं किया, जो फूड ब्लॉगर्स अक्सर पैसा कमाने के लिए करते हैं, हमने बिल्कुल वो चीजें चार्ज नहीं करी, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको शाउट आउट दिया था, जिससे उनका काफी ज्यादा वेलफेयर हो सका। तो ये हमने काम किए थे। This is great. Actually, ऐसे ही हमको अपनी ऑडियंस को यूज करना चाहिए. If you have a great, huge audience, you should use it in the right way. That is very great of you, Ayush. So, Exactly. Achal, I would like to ask you a question now. Like you are in the education sector, right? You teach the underprivileged children. So, what are the challenges that are you facing right now as COVID has impacted as a teacher? Well, I wouldn't call them challenges. It's more that I'm missing those kids. जब हम स्लम्स में जाकर उनको पढ़ाते थे, तो वहां जाना, वहां जाके फिर सारे बच्चों को बुला के लाना, तो देयर पेरेंट्स यूज्ड टू ग्रीट मी लाइक गुड मॉर्निंग मैम, मैम बच्चों को ले जाओ, थैंक यू मैडम। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा बन गया था, जो अब ऑब्वियसली बिल्कुल ही बंद हो गया, तो वो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। प्लस बच्चों को जाके पढ़ाना, अब उनको हाथ पकड़ के आई यूज्ड टू टीच देम, ओके ऐसे लाइन बनानी है, ऐसे अल्फाबेट्स बनाने हैं, तो वो अब ऑनलाइन अगर कर भी ले तो भी वो फीलिंग नहीं आ सकती जो वहां जाके आती है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन हम करते हैं बच्चों के साथ, दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन एनी वे। प्लस इंटरेक्शन फेस टू फेस करना, उनके साथ गेम्स आई यूज्ड टू प्ले, सब लोग मतलब वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स विद देम, अब कोविड की वजह से सो कुछ हो नहीं पा रहा है अब, सो यस आई एम रियली मिसिंग देम। Okay, so it's literally sad for you. So, would you like to ask any question to anyone, Achal? Yes sir, I'll ask that sir, I have a question for you कि अब as you mentioned कि हम चौपाल फाउंडेशन पाठशाला के ऊपर भी काम करता है, पाठशाला भी है, तो आपने भी सिमिलर चैलेंजेस फेस करे होंगे, जैसे अभी मैंने बोला कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है बच्चों के साथ, सो व्हाट हैज चौपाल फाउंडेशन डन, मतलब अब कोविड के बाद भी अभी जैसे चल रहा है, तो हाउ हैज यू गाइज प्रोसीडेड, लाइक व्हाट आर यू गाइज डूइंग अबाउट इट? Basically, how's the Pathshala Education. working now? How is the पाठशाला working? Yes. अगर पहले फर्स्ट और सेकंड वेव की बात करें तो एक्चुअली मैं बार बार जो बोलता हूँ कुछ वर्ड, चौपाल फाउंडेशन चीजें सीखता है बार बार, कैसे सिचुएशन से सीखना और ये सब चीजें। तो फर्स्ट और सेकंड वेव में हम लोग का एक बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, फर्स्ट के बाद बहुत जल्दी रूटीन पे आया पाठशाला, बट फिर से कोविड आ गया था। लेकिन इस बार थर्ड वेव में हम अपनी जो पाठशाला है उसको ऑनलाइन कंटिन्यू कर रहे हैं, और हर जैसा हमारा जब भी पाठशाला ऑफलाइन लगती थी, ऐसी अभी ऑनलाइन उन बच्चों के साथ हमारे वॉलंटियर्स, टीचर्स सब कनेक्ट होके उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक टास्क है कि हमें मार्च तक बच्चों को स्कूल में एनरोल कराना है। तो वो तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है और हमारी टीम का पूरा मानना है कि किसी को होप देके छोड़ना
वो ना करने से शायद मतलब आपको नहीं करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक किसी को लाइफ अगर कोई जाके बस्ती में कूड़ा बीन रहा है, उसको नहीं पता है कि मुझे पढ़ना लिखना या कुछ करना है, और आप जाते हो, और मैं ऐसे एनजीओज को भी और ऐसे इंडिविजुअल को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ऐसा ना करें कि किसी बस्ती में या किसी बच्चों के साथ जाके आप थोड़ा सा उसको होप दे दें, और होप देने के बाद आप छोड़ दें, जिससे क्या होगा कि उस बच्चे की लाइफ शायद जैसी पहली थी ना, उससे भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसको एक उम्मीद हो जाती है कि कुछ वो कर सकता है, बट उसको फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो बर्थडे या फिर अपनी मैं कहूँगा कि बेस्ट डेज या जो भी सेलिब्रेट करने आते हैं लोग, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ एक दिन उन बच्चों के साथ खाना बांटने से कुछ नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हो, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़िए। तो अभी ऑनलाइन उनके साथ क्लासेस चल रही हैं, जैसा मैंने बोला टास्क है मार्च तक 100 या अप्रोक्स बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ग्रेट। ओके सर, दैट इज ग्रेट। पाठशाला चलती रहनी चाहिए, बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सो अभी ये बच्चों की बात हो गई, फार्मर्स की बात हो गई, सबकी बात हो गई। अब हमारी वन community has been left, which are women, sir, because women as a community are always, left behind. They are not talked about much. So as being a part of the Chopal Foundation, I know Chopal Foundation works for the development of women and empowerment of women. So sir, I would like to know ki how COVID impacted women as a community, and how did Chopal Foundation help women as a community? बिल्कुल। सो इससे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी घर एक वुमेन से ही चलता है। घर का जो मैनेजमेंट है अच्छे से वुमेन और जो हमारी महिलाएं हैं वही कर पाती हैं। तो हमारा एक आप सब जानते ही हैं, हमारा चौपाल फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रकल्प चलता है रोशनी के नाम से। तो हमने शुरू ही स्पेशल किया है कि कैसे जो घर की महिलाएं हैं, क्योंकि किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, बच्चों को हम पढ़ा के उनको स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा मेजर मैं कहूँगा एक इशू आता है कि जो महिलाएं हैं, अगर आप गांव में कभी विजिट करेंगे तो गांव की जो महिलाएं हैं, शायद मुझे लगता है उनको मॉर्निंग या इवनिंग में बस काम होता है, वो पूरे दिन उनके पास टाइम होता है तो उसमें अर्न कर सकती हैं। तो शहर में तो बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे पास महिलाएं जाती हैं, काम कर सकती हैं किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी। तो गांव में या फिर हमारे जो स्लम है उसमें हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम एक टैगलाइन के साथ काम कर रहे हैं, जिस टैगलाइन का नाम है रे ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम इसको स्टार्टिंग में रे ऑफ होप भी बोलते थे, लेकिन फिर उसको हमने धीरे धीरे, जैसा मैंने अभी बोला कि किसी को होप देना अच्छा नहीं है, चाहे हम 3-4 साल काम करके किसी को समाधान दे पाए, इसको सोल्यूशन देना चाहिए। तो वुमेन को हम लोग स्लम में और अपने विलेजेस में ऐसे अलग अलग स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग्स देके, और कैसे वो छोटा मोटा ये काम कर सकती हैं, इससे रिलेटेड हम उनको ट्रेनिंग देके एक मैं कहूँगा कि इंडिपेंडेंट और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, और वो अर्न करके अपना परिवार चला सके, अर्न करके। स्लम में हम लोगों को ये प्रोजेक्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कैसे अगर चौपाल फाउंडेशन भी किसी बस्ती में या किसी स्लम में नहीं है कल, तो वो खुद कमा के अपने बच्चों का फीस भर के अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वो ना रुके। तो इस परमानेंट सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। वेरी ट्रू सर, वुमेन के बिना नो हाउसहोल्ड इज कंप्लीट। सो विद दैट अब हमने सारे ऑल आई थिंक ऑल द कम्युनिटीज एंड एवरीवन हैज बीन इंक्लूडेड। सो लास्टली, but not the least obviously, I will ask all of you one by one, what is the positive impact of COVID in your life? Because I'm pretty sure like negatively तो it has impacted everyone, सबके ही सब कुछ खराब कर चुका है, but I'm pretty sure कुछ positive impact भी रहा होगा। So Aanchal, I would like to ask you first, please tell us about your positive impact. What is the positive impact that COVID has on you? COVID has on you. Okay, so firstly, कोविड जब हुआ, नाउ बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आई नो, मैं इकोनॉमी के बारे में पढ़ती रहती हूँ, कैसे कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जैसे सर ने भी बताया कि सोसाइटी एज अ होल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। ये जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, इनको बहुत इम्पैक्ट हुआ है। स्लम्स में जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन एकदम रुक गई, क्योंकि ये बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, आधे से ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो तो स्कूल भी नहीं जाते हैं। बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट ही सिर्फ एनजीओ पर होते हैं।
and it stopped. So that's when I just reflected upon it and I decided कि मुझे भी social work में काम करना है. That's when I got into this field. Also, I started painting. So I painted a lot. I learned a new language and I learned how to cook. My mom is really proud of me for that. Yes. That is great. I am एक pretty happy मेरा for your mother. Yeah, yeah. एक मेरा छोटा सा सजेशन है आंचल के लिए भी एंड दर्श सर के लिए भी, सिंस दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एजुकेटिंग पीपल, एजुकेटिंग स्लम चिल्ड्रन. सो एक चीज है कि कई सारे बच्चों को एंड उनके पेरेंट्स को भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है, स्कॉलरशिप स्कीम्स निकालती है, तरह तरह की निकालती है, स्टेट वाइज भी होती है एंड सेंट्रल भी होती है. तो आप उन लोगों को, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को इस चीज के लिए भी अवेयर करें कि अगर ऐसा कुछ हेक्टिक सिचुएशन आती है कि वो फंड नहीं कर सकते, तो एनजीओ तो है हेल्प करने के लिए, बट एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक रिकॉग्निशन देने के लिए. अगर आप सब भी जानते होंगे कि जिसके पास डिग्री होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो एनजीओ में आप उनको नॉलेज दे दोगे, पर जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है वो उनको स्कूल जाके मिलेगी. तो आप उनको अवेयर करें तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में, जिससे उनको और अच्छे से अपलिफ्टमेंट मिलता है इस फील्ड में. बिल्कुल आयुष, मैं बोलने ही वाला था. पाठशाला का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरी हमारी टीम और सबका क्वेश्चन रहता था. अभी हम एक मैं कहूँगा सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं. सो हमारा पाठशाला का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एनजीओ, जैसा आपने अभी खुद बोला कि एनजीओ जाके पढ़ा रहे हैं और उनको सिर्फ पढ़ा के खत्म कर देना, जब तक डिग्री नहीं होगा कोई वैल्यू नहीं है. तो हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को हमारा एक तरीके से मैं कहूँगा कि काम करने का तरीका है कि किसी स्लम को अडॉप्ट करके वहाँ के बच्चों को, जो भी नियरेस्ट स्कूल है, एमसीडी, गवर्नमेंट, स्टेट का, वहाँ बच्चों को एडमिशन कराना. क्योंकि हम सब जानते हैं जब तक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा और वहां से लोग निकल के नॉर्मल लाइफ के बच्चों के साथ जाके नहीं पढ़ेंगे, उनका जीवन नहीं बदलने वाला है. तो हम इसी तरीके से काम करते हैं, परमानेंट सोल्यूशन उनको देते हैं कि उनको स्कूल पहुंचा देते हैं. हमारा कोई स्कूल ऐसा नहीं चलता है कि सिर्फ हम स्कूल चलाएंगे, हम आपको रिजल्ट्स देंगे. हम सिर्फ उनको तैयार करते हैं. इसीलिए हम उसको बोलते हैं, पहला हम लोग पाठशाला बोलने का रीजन है, पुराने टाइम के वर्ड्स हम शायद सब जानते हैं. पाठशाला एक ऐसी जगह होती थी जहां में एक हिंदी का वर्ड है सर्वांगीण विकास, यानी उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट में कहूँ, उनको तैयार करके स्कूल भेजने का काम ही हम लोग करते हैं. Okay, sir. Okay. So Ayush, what's the positive effect of COVID in your life? ओके, सो पॉजिटिव इफेक्ट की बात हो रही है तो सबसे बड़ा शायद से मेरा ही नहीं, जो जितने लोग भी, जितने स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, या जो जॉब करते हैं और जो घर अपने लिविंग एरिया के बाहर रहते हैं. जैसे मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ, बट मेरा कॉलेज दिल्ली में है. तो एक पॉजिटिव इफेक्ट ये रहा कि मेरे को अपने घर वालों के साथ इतना लंबा ड्यूरेशन बिताने का टाइम मिला, जो कि काफी सालों बाद हुआ था. लाइक मैं 2020 में लॉकडाउन लगा था अप्रैल में, एंड मैं 1.5 ईयर इसके बाद अपने घर जा रहा था. तो मेरी मम्मा भी कह रही थी कि लगा नहीं था कि तुम लोग, मैं और मेरा भाई, वापस मतलब इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए तुम लोग आओगे, बाद में सेटल हो जाओगे, तो कहाँ इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आना होगा. तो एक पॉजिटिव आउटकम मेरे लिए ये था कि घर वालों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला मेरे को. राइट, आई एग्री विद दैट. तो कॉलेज में जाने के बाद आई डोंट थिंक बच्चे वापस घर पे सेट रहने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम जा पाते हैं. सो exactly. So, sir, they both talked about their personal positive effects. I'm pretty sure आपकी personal life में भी positive effects आएंगे COVID के. But I would like to include this topic कि environment के ऊपर भी बहुत positive effect आया था. Because of lockdown and everything, we used to, in Delhi especially, we don't see clear skies, or we don't hear, birds chirping and everything. So during the lockdown, we heard birds chirping as well. We saw clearer skies, and for air quality index बहुत अच्छा हुआ था. So sir, according to you, what was the impact on the environment due to COVID, the positive impact, and how did Chapal Foundation worked towards it?
मैं दोनों क्वेश्चंस को आपको ऐड करते हुए आंसर देता हूँ। मेरे लिए पर्सनल एक्चुअली एक वर्ड होता है, जब आप सोशल वर्क, अगर अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हो, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो भी उसी में कन्वर्ट हो जाती है और आपको अडॉप्ट करनी ही पड़ती है, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप मेरा भी और सभी जो भी सोशल वर्क करते हैं उनका 24/7 तो कहाँ से कॉल आ जाए, क्या हो जाए, क्या किसकी हेल्प के लिए निकलना पड़ जाए। बट जो अभी आयुष बोल रहे थे कि घर जाने का और ऐसा अलग अलग इशू सबने देखा, तो मेरे लिए प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी एक बहुत बड़ा एक चेंज जो था मेरे लिए ये था कि लोग गांव की तरफ लौटे। लोगों ने मतलब सिटीज में थे लेकिन लोग बोर हो गए एक कमरे में बंद करके, अपने आप को क्वारंटाइन करके। गांव पे इम्पैक्ट पड़ा कोविड का, बट लोगों की लाइफ ऐसे नहीं हुई कि आपको बस बंद हो जाना है। आपको एनवायरनमेंट के साथ, आपको अपने खेतों में, आपको अपने घर के बगीचे में, इधर उधर, मतलब आपको एक मैं कहूंगा कि मेंटल आपका खराब नहीं हुआ गांव गांव के लोगों का। तो मेरे लिए एक बिग इम्पैक्ट जो मैं बहुत बड़ा समझता हूँ और अपनी याद में, और शायद आगे ना देख पाए कभी, कि लोगों ने गांव की तरफ लौटना शुरू किया। और आप विश्वास मानिए कि अभी अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गांव में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कि सिर्फ एक Exactly. बहाना हमारे पास हो कि हम लोग गांव जाएं किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि लोगों ने सोच लिया था कि गांव तो बस छोड़ के और सिटी में ही सब कुछ है। बट कोविड ने एक जो बहुत बड़ी चीज सिखाई वो यही थी। तो एक बिग इम्पैक्ट मैं कहूंगा कि ये है, और उसी को देखते हुए हमने सॉरी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ग्रीन समाधान। तो हमने कोविड के टाइम में ही ये स्टार्ट किया था कि कैसे हम एक ग्रीन समाधान के नाम से गांव में भी, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि गांव की ग्रीनरी या गांव का पर्यावरण या गांव का ये सब चीजें बिल्कुल ठीक है, उनको कैसे और अपडेट किया जा सकता है, इस पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। तो बिग इम्पैक्ट यही था कि लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मौका था कि कैसे एनवायरनमेंट पे काम किया जाए, क्योंकि लोग भी लौट रहे थे अपने आप, एनवायरनमेंट को समझ रहे थे और लोग समझ रहे थे कि क्या कीमत होती है नेचर की। तो ये एक बिग इम्पैक्ट मैं मानूंगा कि कोविड ने लोगों को सिखाया है, पर्सनली भी, और लोगों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम करती थी, आज वो मैं कहूंगा कि विलेज कल्चर में काम करना शुरू कर दिया। I agree. So Ayush, would you like to suggest something कि लोगों को environment के लिए like कैसे या कुछ करना चाहिए, like after COVID especially? Some जैसा suggestions कि or हमने सबसे बड़ा जो मैं सजेशन मानता हूँ खुद के लिए भी, एंड मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ, कि हमें ट्रीज प्लांट करनी चाहिए। ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी सबको। ऑक्सीजन रहेगी तो हम अच्छे से, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई है। तो प्लांटेशन ड्राइव करनी चाहिए। शायद से हम चौपाल पाठशाला के साथ एक कोलैबोरेशन में हम प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं किसी ना किसी प्लेस पे आफ्टर द कोविड एंड तो Right. खैर अभी काफी टाइम है, लेकिन हम कर सकते हैं जब भी सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। तो प्लांटेशन ड्राइव कैन बी अ गुड थिंग। Yeah. ऐसे क्लेanलीनेस ड्राइव्स वगैरह चौपाल फाउंडेशन करता रहता है। चौपाल फाउंडेशन ने हाल ही में पॉन्ड क्लीनिंग की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करी थी, जिसमें चौपाल फाउंडेशन ने लाइक जो पॉन्ड्स होते हैं, जो मर चुके होते, डेड पॉन्ड्स जो होते हैं, उनको फ्रॉम द स्क्रैच रिवाइव करा था, लाइक अ रिवाइवल ऑफ अ पॉन्ड विच वाज अ बिग थिंग टू कंप्लीटली एक पॉन्ड को रिवाइव करना। तो ऐसे बहुत सारे काम इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑल्सो चौपाल फाउंडेशन डू, एंड या यू आर राइट, वी शुड do a plantation drive or something like that. So I think with that we come to an end to our this live conference. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much speakers for giving your precious time. I hope हम सबने आज कुछ ना कुछ नया जाना होगा, सीखा होगा, और कुछ नई चीज हमने पता करी होगी। So everyone who's watching us, if you like what you saw and heard, please follow us, join our hands, help us to bring a solution for the underprivileged, for the society as a whole, not just underprivileged, the environment, everywhere. So thank you so much again. Thank you, Darsha. Thank you, Ayush. Thank you, Achal. It was a great Thank you. session. I hope you all enjoyed.
And for the audience, Thank you if so you much. like, if you join more of these, हम ये हर Sunday करने वाले हैं ऐसी lives on different topics. So do join us every Sunday. And for the meantime, follow Chopal Foundation. Thank you so much. I hope you all liked it. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Thank you you. so much.